যে কামারহাটির বাচ্চা বাচ্চা যেন শিক্ষাটা পায়, মানে এডুকেশন আমরা চাইছি কামারহাটিতে 100% এডুকেশন করে। আজকেই হবে না, টাইম লাগবে। সংস্কৃতি তো মাস্টারমশাইদের থেকেই নেওয়া। যারা মাস্টারমশাই আছেন তারা তো ছোটোবেলা থেকে শিখিয়েছেন আমার সোনার বাংলা আমি সকলেই জন্মে আছি। তাই সেই बीजेपी वाले नफरत की पॉलिसी करके राज करना चाहते हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। कमट्टी विधानसभा के एमएलए मदन मित्रा की रहनुमाई में कमट्टी बीट रोड उदय विला में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कमट्टी आबादी के समाजी और अदबी तबकात के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कमट्टी एमएलए कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा, कमट्टी म्यूनिसिपल के चेयरमैन गोपाल साहा, वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी, चेयरमैन इन काउंसिल इन एजुकेशन मेघना मित्रा, काउंसलर अफसाना खातून, काउंसलर रिस्मा जहां, काउंसलर अफजल खान व दीगर मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की खबर कि मीडिया से बात करते हुए इफ्तार पार्टी में आए लीडरान और शिक्षकों ने क्या कहा। আমাদের কামারহাটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি জেনারেল সেক্রেটারি আনিসুর রহমান ওর উদ্যোগে এখানে একটা আজকে রমজানের এই পবিত্র মাসে একটা ইফতার এর আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে আমাদের কামারহাটির সকল মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা এসছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই এরকম এক একটা ইফতার করছি এবং আমরা চাই যাতে সব মানুষ আমরা একসঙ্গে মিলে এখানে থাকি এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে আরও ডেভেলপমেন্ট কী করে কামারহাটিতে করা যায় সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এবং এডুকেশনের উপরে আমরা এই আমাদের ঈদে চলে যাওয়ার পর আমাদের এই কামারহাটি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা আছে যে এডুকেশনকে ফোকাস করে আমরা কামারহাটিতে অ্যাওয়ারনেস করার চেষ্টা করব মানুষের। আজকে দেখা গেল কি যে প্রোগ্রামে অর্ধেক থেকে বেশি টিচাররাই, তাই আপনি দেখতেই পারবেন আমরা চাইছি যে কামারহাটির বাচ্চা বাচ্চা যেন শিক্ষাটা পায়, মানে এডুকেশন আমরা চাইছি কামারহাটিতে 100% এডুকেশন করে। আজকেই হবে না, টাইম লাগবে। 100% এডুকেশন আমরা কামারহাটি 1 থেকে 9 যে অঞ্চলটা বা 8-এর একটা পার্টের অঞ্চল সেটা আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম এডুকেশন এখানে যেন করা যায় কামারহাটির ছেলেপুলেদের, তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলের জন্য। কামারহাটির সংস্কৃতি হিন্দু মুসলিম কি আরও ভাষাভাষী যা আছে সবাই আমরা এক। আমাদের পরিচয় হচ্ছে যে আমরা কামারহাটিবাসী, আমরা বাংলার মানুষ। তো সেই কারণে বলছি যে এটার মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। আমরা একসঙ্গে আছি, একসঙ্গেই থাকবো আর একসঙ্গেই কাজ করব। তাই আজকে যখন আমি এখানে এলাম আমার একেবারেই মনে হলো না যে অন্য একটা উৎসবে এসেছি, মনে হচ্ছে যেন আমার উৎসবেই এসেছি। এটাও তো একটা উৎসব। উৎসব বলতে এরকম যারা আজকে উপোস করে আছেন ভোরবেলা থেকে এখন সেই উপোস ভাঙছেন, তার সঙ্গে আমরা বসে উপোস ভাঙার উৎসবে বসে থাকতে পেরে আমরা নিজেরা খুব গর্বিত এবং আনন্দিত। এই পবিত্র মাসে রমজানে কামারহাটিবাসীকে কি মেসেজ দেবেন? মেসেজ দেবো যে আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমরা কামারহাটি মানুষ, বেলঘরিয়ার মানুষ কি নদাপাড়ার মানুষ নই, আমরা সত্যি সত্যি বাংলার মানুষ। আমরা কামারহাটির সকলেই কামারহাটির মানুষ, আলাদা করে আমাদের পরিচয় নয়। সংস্কৃতি তো মাস্টারমশাইদের থেকেই নেওয়া। যারা মাস্টারমশাই আছেন তারা তো ছোটোবেলা থেকে শিখিয়েছেন আমার সোনার বাংলা আমি সকলেই জন্মে আছি। তাই আমরা মনে করি মাস্টারমশাইরা এসছেন, তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। মাস্টারমশাইরা সবসময় থাকলে আমরা আরও বেশি উৎসাহিত হই যে মাস্টারমশাইরা আমাদের সাথে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের থেকে তো যেটুকু শিখেছি সবাই মাস্টারমশাইয়ের থেকেই তো শিখেছি। তাই আমাদের সমাজে মাস্টারমশাইরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমাদের। देखा गया कि ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल टीचर्स और बिजनेस मर्चेंट्स लोग थे, क्या कहेंगे इस बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो है अफ्तार की दावत हुई है, जो हमारे एमएलए साहब श्री मदन मित्रा की ऑर्गेनाइजेशन कमट्टी डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत जो है ये अफ्तार की दावत हुई है, जिसमें हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही जो है अनिसुल रहमान, जिनको गुड्डू बुलाया जाता है, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत ही जो है उम्दा किस्म के जो है, और उनके साथ साथ जो है अली राजा, परवेज़ अंसारी, हाजी परवेज़ अंसारी, परवेज़ अख्तर और भी जितने जो मैं बहुत सारे नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी की टीम है, मैं उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मदन मित्रा साहब का भी, और जितने भी हमारे कम्युनिटी वार्ड के काउंसलर और हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए थे, श्री मिस्टर गोपाल साहब जो है, और भी CIC भी थे जो है, उन सभी का जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो है कौमी एकजुटता की एक मिसाल है, जो एक तरफ जो है हिंदुस्तान में इस तरह का हालात हो रहे हैं और हम लोग हमारे
जितने भी है भाई, हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, जो भी आज हम लोग प्लेटफॉर्म पे आके एक गेट टुगेदर हुआ है, जो है दावत इफ्तार हुई है, जिसमें ज़्यादातर जो है इसमें पॉलिटिशियन भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, प्लस एक एजुकेशनिस्ट भी है, अच्छे अच्छे लोग जो है इसमें शामिल थे, जिनके वजह से आज जो है तमाम लोगों की जो है कोशिश का नतीजा है आज हम लोग इस कामयाबी पे पहुँचे हैं। मदन मित्रा जी जो है वो इलाके में इस ढंग से पॉपुलैरिटी अपनी रखते हैं और काम करते हैं और हर तरह के काम करते हैं। बिलखुसूस जो है वो एजुकेशनल जो माने इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक़ रहता है और टीचर हजरात के जो मसाइल हैं वो बहुत हद तक हल करते हैं। इसलिए उनके कहने पर, उनकी आवाज़ पर जो है हम लोगों ने लब्बैक किया है और कहा है। और उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि अब हमें ये उम्मीद है कि इलाके में एजुकेशन का मामला जो बहुत दिनों तक अल्तवा का शिकार था, वो अब जो है हमारे एक टीचर भी जो है काउंसलर हो गए हैं, बगल में हमारा बैठे हुए। हाँ, मेघना मित्रा जो CIC हुई है, वो मेघना मित्रा से भी अभी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन का कोई भी मसला होगा, आप तमाम टीचर्स हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे सामने पेश कीजिए और मैं अब भरपूर कोशिश करूँगी कि कमट्टी में जो एजुकेशन के मसाइल बहुत पुराने हैं और हल तलब हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है, उसमें मैं आप लोगों को पूरा जो है सहयोग दूंगी। ये उन्होंने वादा किया हम लोगों से, इससे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है। और अगर ऐसी तरह से मैंने तालीम याफ्ता हजरात की कदर की गई और उनका एहतराम किया गया, उन्हें जो है इज्जत के साथ बुलाया जाए कहीं भी, तो हम तमाम लोग जो है वो हाजिर रहेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये होगा कि हमारे इलाके में तालीम और फ़िरका ये जो परस्ती का जो पूरे हिंदुस्तान में जो ज़ोर बढ़ा हुआ है, हमारे इलाके में लोग आपस में मिलजुल के भाई भाई की तरह रहें और तालीम का फ़रोग़ हो, कौमी यकजहती का फ़रोग़ हो। और उसके साथ साथ अमन और शांति जो है वो कमट्टी का एक रिकॉर्ड रहा है शुरू से अभी तक, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। ये अमन और शांति का गहवारा जो कमट्टी रहा है, ये हमेशा रहे। वगैरह करवा दिया है 11-12 वहाँ पर खुलने की, ये बहुत जल्द खुलने का मैंने ये खुलने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी ये जनाब परवेज इंजीनियर हैं, हम खुद प्रेसिडेंट हैं या दूसरे लोग जो हैं, हम लोग तमाम चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए वहाँ का मसाइल, वहाँ पर वो जल्द ही जो हायर सेकेंडरी स्कूल कायम होगा। और कमट्टी उर्दू जूनियर हाई स्कूल को भी हम लोग माने फुल फ्लेज स्कूल की तरह से चलाने में हमारे अफजल खान साहब की मैंने मदद से और मेघना मित्रा की मदद से हम लोग उस स्कूल को फुल मैंने रनिंग जो है फुल स्विंग में उसको रनिंग करने में कामयाब होंगे। मीडियम हाई स्कूल की बात हुई है। मैं खुद मेरे वार्ड में सगरदत्तो स्कूल जो है, सगरदत्तो हाई स्कूल, उसके टीचर से भी मैं बात किया हूँ। मैं MLA विधायक जो हमारे हैं मदन मित्रा साहब, उनसे बात हुई है, शौकत राय साहब से बात हुई है। उन्होंने वो लोग भट्टो बसु से भी बात की है। एक लेटर हम लोग कल परसों में जाएंगे और चूँकि जतिन दास में हुआ, जतिन दास के जो हेड टीचर है उनके साथ भी बात हुई है। इनके से बात करने के बाद हाई स्कूल जो सगरदत्तो हाई स्कूल है उसमें बच्चों की तादाद कम है, उसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल इंशाल्लाह बहुत जल्द, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी चालू होगा। बाकी सर जो बताएं, सर की जेर निगरानी हम लोग बहुत दिनों से कमेटी में एजुकेशनल जितने भी वर्क्स में उसमें सर हमेशा सरपरस्ती करते रहे हैं। आइंदा दिनों में भी और भी बहुत सारे हम लोग जो मसाइल हैं उनके ऊपर इनके राय लेकर, इनका मशवरा लेकर आगे काम किया जाएगा। और ये आपको एक ज़मीन आप लोगों को पता है कि सलमिया स्कूल के नाम से फूल बागान में भी है, इंशाल्लाह उस ज़मीन का भी इस्तेमाल किस तरह हमारे कमेटी में आने वाली नस्लें जो बेहतर तालीम हासिल कर सके उसको किस तरह किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात हो रही है। और 43-44 कट्टा ज़मीन है जिस पे अभी बात हो रही थी कि वहाँ पे थाना बनेगा, लेकिन एक खुशखबरी है कि वहाँ थाना नहीं बनेगा, वो माइनॉरिटी हब के तौर पे इस्तेमाल होगा। वहाँ कॉलेज बने या फिर यूनियन कॉलेज में कॉलेज बने। तालीमी सिलसिले में सर हैं, परवेज इंजीनियर साहब हैं, बाकी हमारे जो टीचर हजरात हैं और यहाँ के जो हमारे MLA MP चेयरमैन हैं, बाकी लोगों को लेकर किस तरह कमेटी को एक बेहतर तालीम डेवलपमेंट तालीमी तरक्की किस तरह बेहतर से बेहतर हो, इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम लोग मिलजुल कर दानिश्वर तबका जो पॉलिटिशियन है, बाकी टीचर हजरात हैं, मिलकर हम लोग इंशाल्लाह किया जाएगा। जो इफ्तार था कमेटी डेवलपमेंट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अनीसुर रहमान उर्फ गुड्डू साहब के नेतृत्व में, मदन मित्रा के सरपरस्ती में आज जो कमेटी के कुछ बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे और जो कुछ सामाजिक कारकुन थे, ये
किसी पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं, जस्ट ये एक सोशल वर्कर के बैनर तले हुआ है, जिसका हम लोग कमेटी डेवलपमेंट सोसाइटी से सब कुछ जुड़े हुए हैं। और अभी प्रेजेंट में अनीसुर रहमान उर्फ गुड्डू साहब कमेटी डेवलपमेंट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके प्रेसिडेंट सोम मित्रा साहब है, मगर इनकी सरपरस्ती हमारे मदन मित्रा साहब करते हैं। और मेरी नौयत के हिसाब से ये एक शानदार अफ्तार का इंतज़ाम किया गया है हमारे विधानसभा में। इससे पहले इतना सजाकर और इस तरह के से इसको किया गया है जो अपने आप में एक अनोखा मकाम रखता है। की जो लहर है खत्म है, लोग खरीदारी करने जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ में एंजॉय करेंगे, तो आप इस मौके पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर कमेटी वर्ग के लोगों के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल जिस तरह से हम लोगों ने अपने आप को कैद करके रखा था और प्रशासन और हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जिस तरह से हम लोगों ने अपने त्यौहार को मनाया है, इस बार अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना का उस तरह का कोई लहर नहीं है, मगर अभी दिल्ली में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग त्यौहार मनाइए, मगर अपने आप को बचाते हुए सोशल डिस्टेंस देखिए, मास्क का यूज़ कीजिए जहाँ पर ज़रूरत है। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मास्क आप इस्तेमाल मत कीजिए, मगर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर आप गैदरिंग में जा रहे हैं वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ये अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हम लोगों ने उदय बिल्ला में रखा, जो अनीसुर रहमान गुड्डू भाई के सरपरस्ती में और उनकी पूरी टीम, जैसे अरमान मलिक, सूर्या भाई, परवेज अंसारी, आपको और हमारे जितने हैं, राजूदा हैं, आपको इसामुद्दीन भाई, आज़ाद हैं, सनवर भाई हैं, हमारे राजू है, इधर साबू है, राज है, हमारे जितने ग्रुप के तमाम लड़कों ने मेहनत करके जितने भी समाजी और सियासी लोग हैं उनको मदऊ किया गया था। इफ्तार पार्टी एक्चुअल एक बहाना है। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जिस तरह से फ़िरका वाराना तौर पर जाति धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी, चाहे हमारे नेता मदन मित्रा जी, इस अफ्तार पार्टी के ज़रिए ये लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस अफ्तार पार्टी में हमारे हिंदू भाई, बंगाली भाई, मुस्लिम, तमाम समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और ये एक पैगाम देते हैं कि हमारा हिंदुस्तान यूनिटी पे चलता है, डेमोक्रेसी पे चलता है, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे नहीं चलता है। जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुर में रमज़ान में ये वाक़या हुआ, दो संप्रदाय के बीच में झगड़ा हुआ और कहीं ना कहीं लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन बंगाल में देखा जा रहा है कि तृणमूल के काउंसलर हर दिन कहीं ना कहीं तृणमूल की जानिब से, काउंसलर्स की जानिब से इफ्तार कर आपसी भाईचारगी का सबूत दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के कुछ लीडरान को वफद की शक्ल में जहांगीरपुरी भेजा था। जहांगीरपुरी का जो मामला है टोटल प्लान किया हुआ मामला था, कोई दो समुदाय के बीच में ये लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई लगाई गई थी बीजेपी की तरफ से। आपने देखा होगा मीडिया के मार्फत में कि उस जगह में पुलिस परमिशन नहीं होने के बावजूद भी वहाँ से जुलूस निकाला गया। ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शोभा यात्रा हो, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे जितने भी हिंदू भाई थे उस जुलूस में उनको शरबत दिया जा रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। जाति धर्म में हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। ये बीजेपी वाले नफरत की पॉलिसी करके राज करना चाहते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, ये गुलाम बनाना चाहते हैं, मगर जब तक ममता बनर्जी और मदन मित्रा जैसे लीडर जिंदा रहेंगे ये मुमकिन होने वाला नहीं है।